meeting is being recorded. वाह, तेरी है। ओके, ईशावास्य उपनिषद। आज हम पढ़ेंगे वर्ष नंबर 9 है। Verse number 9. Okay, I can take this. हाँ मगर Basically, verse 9 is the practical essence of verse 6 to 8. So, what did verse 6 say? Verse 6 said that do not hate or criticize anybody because all living entities have same father. You remember, it said that we are sparks of the same fire. So, that was the message from verse 6. And verse 7 said that if you do that, then there is no shok and there is no delusion. उसके बाद शोक की और किसी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती. No lamentation, no delusion. And eighth, which we covered last time, it said that the Supreme Personality is great and it can fulfill all desires, but we should desire properly. We should be careful what we desire. So, verse 9 now is dealing with this subject only, that how to desire properly. How to desire properly. So here they are introducing, the verse is introducing the concept of vidya and avidya. So we can read the verse now. Andham tamah pravishanti ye vidyam upasate tato bhuya iva te tamo ya yu vidyam ratah. Here andham is gross ignorance. Total ignorance is andham. Tama is for darkness. Pravishanti is enter into. Ye means those who. Upasate, worship. Tataha is then that. Bhuya is still more. Eva is like. You is also. And Vidyayam is the culture of knowledge. And Rataha is engaged. So the translation goes like that. That those who worship avidya, they enter the darkest ignorance. And those who engage in the vidya, which is not the real vidya, which is only the so-called knowledge, they enter into even darker ignorance. Yeah. So those who are कहीं से वो those who आवाज आ worship रही है avidya. बैकग्राउंड में। म्यूट पे कर लें जिसको बात नहीं करनी है, जब बात करने लगे तब अनम्यूट कर लें। ये गुलाटी जी आपका दिख है। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल चुपचाप हूँ, घर में कोई भी नहीं। घर में नहीं, आपकी मशीन कर रही है। जब मैं ये कर चलो, maybe it was the right thing. Yeah. So this translation is clear, right? Those who are engaged or who worship avidya, they enter the darkest ignorance. And those who are engaged in vidya, which is not the real vidya, they are entering even the darkest ignorance. Okay? So point is, this is confusing, paradoxical, little paradoxical. So we have to understand what vidya means here and what avidya means here.
So let us first see in this verse, as per this verse, what is the meaning of avidya. So worshipping avidya means that those who are materially ignorant, those who are materially ignorant, those who are leading a sinful or a illegal kind of life, those who are having too much or unrestricted sense gratification, they just do not know when to stop, how to stop. That is coming under the category of avidya. So any kind of sinful, illegal way of living with only eat, drink, and be merry kind of attitude, that is mentioned here as avidya. We'll come to that again later on. Let us first define here what is vidya here. This is the main paradox. Vidya here means the so-called knowledge, which he is saying is even more dangerous, because this so-called knowledge, when it is mistaken or misguided, it is even more dangerous. So what is it? ये मकरंद सो कॉल्ड नॉलेज मतलब गूगल से ईशा उपनिषद के बारे में पढ़ लिया. Well, not exactly this, but a sense of making false progress in a supposedly right direction. मतलब जिसको आप राइट डायरेक्शन समझ के और एक उसमें एक फाल्स सी प्रोग्रेस कर रहे हो, ये सोच के कि हम बहुत उन्नति कर रहे हैं, पर एक्चुअली वो उन्नति नहीं है. ये वो चीज है. इसमें क्या कि अभिमान आ गया है आपको. It is kind of a, you can say it is a kind of a godless civilization. It is kind of godless civilization कि भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस. अगर मैं बहुत पढ़ लिख लिया हूं या एक ओहदे पे और एक पोजीशन पे हूं, देन आई कैन डू एनीथिंग. तो वैसे तो वो ज्ञानवान है एक वर्डली सेंस में, उसके पास विद्या है, लेकिन वो कहां से आ रहा है, फ्रॉम वेयर ही इज ऑपरेटिंग, फ्रॉम व्हाट माइंडसेट ही इज ऑपरेटिंग, दैट इज अविद्या. The person may be possessing all kind of एक्सटर्नल नॉलेज, degrees, knowledge, or whatever, name or fame even, but the mood in which he is operating, that is a kind of a godless mood. का कोई एग्जाम्पल है जी? Which is एग्जाम्पल तो इसके चारों तरफ हैं. जैसे रावण. इसके चारों तरफ जैसे इसका एक एग्जाम्पल इसमें यह है कि जैसे जैसे एक डॉलर नोट है, फॉर एग्जाम्पल एक डॉलर नोट पे हम लिखते हैं इन गॉड वी ट्रस्ट. बट द फैक्ट इज दैट डॉलर इज द ओनली गॉड. Dollar is the only God. Although you write a very, very nice thing on the dollar note that in God we trust, but the real God is dollar only. So, false sense of values. You can say it's a false sense of values. जैसे इसको ऐसे करें कि यू आर एडवर्टाइजिंग योगा फॉर मेंटल पीस, बट यू आर यूजिंग इट एज ए टूल टू मेक मनी. हाँ ये बेटर एग्जाम्पल है. तो थोड़ा सा उसको हाँ समझना पड़ेगा कि कहाँ से आ रहा है ये. कि on one side we are saying
yoga for mental peace, but we are using that to make money rather than let it remain at yoga. Yoga for yoga, for mental peace or health, but utilizing it, promoting it to only, let's say, prosper in your business. जैसे स्पिरिचुअल नॉलेज या स्क्रिप्चरल नॉलेज ही है, फॉर एग्जांपल, many times we all see around us that this knowledge is misused, misinterpreted, abused even for self-interest, self-glorification. So on one side, you may call it that spiritual knowledge is an ancient way having no modern relevance. It's a backward way of thinking or anything. Many people say like that very clearly. But at the same time, they do not hesitate to utilize it if it is furthering their material interest. So it is Vidya, but it is classified here as avidya. So-called, it is a so-called this one, Vidya. So you can say in this context, and Harsh can clarify a little more, but my understanding is in this context, if you are using your Vidya with a mindset of avidya, then it is not a Vidya, it is avidya, like this. So mindset is important. Or you can say a Vidya without a spiritual mindset or a God between as a centerpiece of that Vidya is avidya. तो प्रश्न ये उठता है कि जो आपने एग्जाम्पल दिया, जैसे अगर योग की विद्या है तो योग विद्या तो विद्या ही है, उसका यूटिलाइजेशन जो है अगर वो गलत पर्पस के लिए हो रहा है, मगर उसमें आप विद्या को तो दोष नहीं दे सकते। विद्या को दोष दे सकते, दैट इज राइट। तो इसलिए सो कॉल्ड, तो फिर वो विद्या अविद्या कैसे बनी? आप बताओ। हाँ बताओ ना। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है। नहीं, किस भाव का फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि भाई भाव मेरी भाव तो ठीक अंडरस्टैंडिंग है, वही मगर है। हम इस वर्ष में भाव की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम तो विद्या की और अविद्या की बात कर रहे हैं। नहीं, विद्या जो है वही तो डिफाइन किया गया है ना, कि विद्या जो तो है इस वर्ष के शुरू किस में आप भाव से देखिए जो है वो प्राप्त की जा रही है। जैसे इसने, हम शुरू पे आते हैं, उसकी ट्रांसलेशन पे आते हैं। ट्रांसलेशन में उसने ये कहा कि दोज हु आर फॉलोइंग अविद्या, जो कि मतलब डिक्लेयर्ड अविद्या है कि भाई इग्नोरेंस है, ये है वो है, वो तो एक डिक्लेयर्ड अविद्या ही है ना। नो, आई थिंक वो अविद्या पहला वाला जो बंदा दिया है वो तो वो है जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वो तो जो भी उस तरीके से अरे कैसे। वही मैं कह रहा हूँ, वो तो डिक्लेयर्ड अच्छा अविद्या है ही है। अच्छा, ये दूसरा वाली जो है तो वो हम ज्ञान कहते हैं, अगर उसका भी हम यूटिलाइजेशन ठीक नहीं कर रहे हैं, सो हाँ, इट इज इवन मोर डेंजरस। दिस इज व्हाट दिस थिंग इज या सेइंग। नो उसको उन जो जो उसमें कहिए ना, उसमें गीता में जो था वो कि भाई जो इस तरीके से ये कर रहा हो तो उसको ज्यादा कंफ्यूज मत नहीं कर देना। तो इसका एक तो पहली अविद्या तो वो है, वो जिसको कह दो भाई जो मूर्ख है, आई डोंट वांट टू से दैट वर्ड, उसको वो इग्नोरेंट है, हाँ, इग्नोरेंट है, या, इग्नोरेंट है। अच्छा दूसरे में क्या है कि आपने विद्या तो सीख ली, लेकिन विद्या तो विद्या मैनिपुलेशन रही, बट के उसका साथ। जो यूज, हर्ष जी को जवाब दे रहा हूं, उसका यूज जो आप कर रहे हो, आप भाव की बात छोड़ दो, उसका यूज आप अच्छे कार्यों में नहीं कर रहे हो, देन वो दैट उस विद्या की हम बात कर रहे हैं सेकंड में। हाँ, उसको ही वो कहता है, वही है, इतना ही ये अंदर। भाव की बात नहीं है कि उसको
कि तुम्हें जैसी बात है भाई, ये तुम्हें साइंटिफिकल सिखाया गया कि पत्थर तोड़ने के लिए ये बॉम्ब इस्तेमाल कर लो, घर बनाने के लिए वो प्रॉपर यूज है, मगर आप बॉम्ब करके वो लोगों को मार रहे हो, वो बैड यूज है। दैट्स द वे आई लुक इट। एनीवे, आई एम नॉट द एक्सपर्ट, नहीं, बट दैट, and just get way, you know, तो उनको वो बुरा कहता क्योंकि तुम्हें पता भी था ये बम है और तुम उसको इस्तेमाल बुरी तरीके से कर रहे हो। दैट्स तो इवन डार्कर, इसीलिए इवन डार्कर इग्नोरेंस कहा है, या इवन डार्कर। बात तो वो घूम फिर के वही होगी ना, विद्या इज नॉलेज and how you use it how come use of vidya makes it avidya. अविद्या, यही है इसमें। नहीं, मगर उसमें उसने जो ऊपर की लाइन में ये बताया गया है कि वो और ब्लैक डेंजरस, डेंजरस, पहले वाले को बताया ना अंधकार में जाएगा, मगर ये उससे भी ज्यादा वाले अंधकार में जाएगा। दैट्स व्हाट इंटेंशन इज। आप बोल रहे हैं एटॉमिक जो वो हमने साइंस सीखी उससे बिजली बना रहे हैं तो ठीक है, या लेकिन अगर लोग एटम बम फोड़ना शुरू कर देंगे तो वो और अविद्या होगी। आप तो इस तरह की बात हुई। पर्सन की बात कर रहे हो ना, नॉलेज की बात तो नहीं हो रही ना, ये पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है ना, वो कैसे यूज करता है उसको। बिल्कुल सही कह रहे, इसीलिए वो वर्ड यूज कर रहे हैं एक रामलो तरीके जी से आप कि म्यूट पे हो। सो कॉल्ड विद्या। हाँ, कहने को तो विद्या है वो, पर सो कॉल्ड है, बिकॉज इट इज टेकिंग यू अवे फ्रॉम द स्पिरिचुअल और कॉन्शियस लिविंग, यू कैन से। हाँ रामलो जी कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं सिर्फ यही बोला था कि अब जरा सा हर चीज वो हाफ कंप्लीट हुआ था आपका। यू स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग विद्या ना विद्या, बिकॉज जो विद्या है वो विद्या है, जो अविद्या है वो अविद्या है। अब आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट डिसाइड योर डार्कर साइड और ब्राइटर साइड। नहीं, अविद्या तो वैसे कोई चीज ही नहीं है, विद्या है। अविद्या विद्या एक चीज है, अविद्या कोई चीज नहीं है। आपको कुछ पता ही नहीं है तो वो अविद्या है, मतलब उसका उसका कोई फिजिकल कंसेप्ट नहीं है अविद्या का। वॉट यू डोंट नो, इट इज अविद्या। आप भाई इग्नोरेंट हैं, आपको पता ही नहीं है, वो तो अविद्या हो गई, मतलब पता ही नहीं कुछ। और विद्या वो है जिसमें आप इग्नोरेंट नहीं है, आपको ज्ञान हो गया है, आपने पढ़ लिया है, लिख लिया है, ये समझ लिया है, आप साइंटिस्ट हो गए, आप ये हो गए, वो हो गए, वो आपने विद्या तो ग्रहण कर ही ली है। बट वॉट दिस थिंग इज सेइंग दैट if it is kind of not utilized by keeping the God consciousness in the middle, then it is even more dangerous than being ignorant. This is what basically या ये कह रहा है इनका मतलब ये वो है। अब देखो ना, जैसे आजकल गॉड क्या है, एक मोटा एक ऐसे बात कर रहा हूं कि गॉड इज काइंड ऑफ ए फिल इन द ब्लैंक दीज डेज। फिल इन द ब्लैंक किस तरीके से कि भाई जितना हमें अज्ञान है, या मतलब ये जो जितना हमें साइंटिफिकली नहीं पता है, जिस चीज का हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसको हम कह देते हैं कि भाई ये कोई ऊपर वाली चीज है, गॉड है, ठीक है ना। और जैसे जैसे हमें पता चलता जाता है, वो गैप जो है वो मिनिमाइज होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ 100 साल पहले अगर हम ये कहते कि भाई इंसान उड़ सकता है, तो हम कहते भाई ये तो भगवान ही कर सकता है, या भगवान की कृपा से ही ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन जिस दिन हमने खुद वो हासिल कर ली साइंटिफिकली, उस दिन से उसमें भगवान का कंसेप्ट खत्म हो गया। तो जैसे जैसे हमारा जो भौतिक ज्ञान या कह लो जो भी है ये बढ़ता जाता है, उसी तरीके से जो कंसेप्ट ऑफ गॉड कह लो या वो कम 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 होता जाता है। सो ये द कुछ गॉड समझ में नहीं आ रहा स्टार्ट्स है। एग्जिस्टिंग इन गैप्स, समझ रहे हो? ये बात समझ में इसलिए नहीं आ रही कि
द सोर्स ऑफ नॉलेज, द सोर्स ऑफ ओनर ऑफ द एक्शन, जो हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में जितना भी समझे, इट इज द सुप्रीम गॉड, परमात्मा जिसको हम ये हम कहते आज हैं। सोचते हैं ना। हाँ। सपोज आज आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ कि हमें ये पता लग गया कि हाउ टू बिकम इमॉर्टल। हमें अगर ये पता लग गया कि हाउ टू बिकम इमॉर्टल मीन्स वी कैन एक्सटेंड आवर लाइफ एज मच एज वी वांट। हम्म। वी हैव फाउंड द की, कि जिसकी वजह से जो है हमें पता लग गया ये वाली गोली खा लो और 10 साल और जी लो, ये गोली और खा लो 100 साल और जी लो। काइंड ऑफ मतलब आज ये हाइपोथेटिकल हो सकता है, जैसे कि आज से कुछ 100 साल पहले कुछ और चीजें हाइपोथेटिकल थी जो आज रियलिटी हो गई। तो आज ये जो चीज हाइपोथेसिस है कल को अगर रियलिटी हो जाती है, आज हम इसको जो कहते हैं कि भाई जीवन मरण भगवान के हाथ है। कल को अगर हमें फंडा पता चल गया तो हम कहेंगे भाई अब तो हमें पता है ये, अब इसमें गॉड की क्या जरूरत बर्ट्रैंड रसल का स्टेटमेंट यही तो था कि द डे मैन कैन टेल कि हाउ वी डाई, गॉड विल वैनिश। उसने कहा कि है। जन्म का तो लोगों को पता है कि इसी फिजिकली अटैच होकर हो गए, कि भाई वी डाई, कि एक एक व्यक्ति मर्थ था, उसने का। एक किताब लिखी। हाँ, हाँ, किताब लिखी और उसने बहुत अपने दिमाग से बड़ा अच्छी चीजें उसमें लिखी, और एक ज्ञानी को भेज दी कि भाई आप इसको पढ़ के और इसके ऊपर मेरे लिए कमेंट करो। तो ज्ञानी व्यक्ति ने उसको किताब को पढ़ा या नहीं पढ़ा पता नहीं, बट काफी टाइम तक उसका कोई जवाब नहीं आया। तो इस व्यक्ति ने फिर से उसे लिखा कि भाई आप मुझे बताओ, मैंने इतनी अच्छी किताब लिखी, क्योंकि तो बड़ा, इसको तो बड़ा गर्व हो रहा था कि मैंने कितनी नई नई बातें इसमें लिखी हैं, कितनी अच्छी बातें लिखी हैं। तो ज्ञानी ने उसको फिर एक छोटा सा जवाब दिया। उसने दिया कि भाई तुम्हारी पुस्तक में कुछ ज्ञान की बातें भी हैं और कुछ नई बातें भी हैं। जो नई बातें हैं वो ज्ञान की नहीं है, हम्म, और जो ज्ञान की है वो तो बहुत पुरानी है। हम्म। तो ये बर्ट्रैंड रसल वगैरह को छोड़ दो आप। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हमारे शास्त्रों के अंदर एक सिंप्लीफिकेशन करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अदरवाइज हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज में घूम जाते हैं, दिमाग भी परेशान हो जाता है। सिंप्लीफिकेशन, विद्या और ज्ञान में एक तो फर्क है। विद्या वो टूल है जो ज्ञान की तरफ ले जाता है। कोई भी, जैसे हमारे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सब्जेक्ट्स एक विद्या है। उस सब्जेक्ट को समझने पढ़ने के बाद में आपको ज्ञान होता है। जो विद्या आपको अल्टीमेट ट्रुथ, सेल्फ रियलाइजेशन, भगवान की प्राप्ति, इस तरह के जो हम वर्ड्स यूज करते हैं, उस तरफ ले जाती है, उसको हम विद्या कहते हैं। जो उस तरफ नहीं ले जाती है उसको हम अविद्या कहते हैं। पहली चीज तो ये विद्या और अविद्या का डिफरेंस क्या है। ज्ञान से उसको भ्रमित ना होइए, ज्ञान तो उसका एक आउटकम है। ठीक है। तो हम विद्या उसको बोलते हैं जो विद्या हमें एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरफ ले जाती है। अब उस एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरफ ले जाती है, मैं इसका इस तरह से बोल रहा हूँ। आप, कोई उसमें बोल सकता है परमात्मा की तरफ ले जाती है, कोई कहता है भगवान की तरफ ले जाती है, कोई कहता है सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जाती है। मतलब डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। ठीक। बट बेसिक कॉन्सेप्ट इज विद्या इज दैट दैट एजुकेशन, दैट नॉलेज जो उस तरफ ले जाता है। यानी वो सब्जेक्ट को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, तो वो ले जाता है, उसको हम विद्या बोलते हैं। तो जो अविद्या है वो उस तरफ नहीं ले जाती है।
तो उस तरफ नहीं ले जाएगी तो किस तरफ ले जाएगी? वो ग्रॉस की तरफ ले जाएगी, यानी संसार की तरफ ले जाएगी। उसका जो अंत होगा वो ग्रॉस में होगा, स्थूल में होगा, सूक्ष्म में नहीं होगा। तो जो अविद्या की तरफ, उस सब्जेक्ट की तरफ ध्यान लगाते हैं, तो वो तो स्थूल में ही जाने वाले हैं, इसलिए उनका जो डेस्टिनेशन है वो अंधकार है। क्योंकि स्थूल का इवेंचुअल डेस्टिनेशन अंधकार है, और उसकी जो जो अंत होता है वो अंधकार में होता है, तो वो अंधकार में चला जाता है। तो ये तो बात क्लियर हो जाती है कि जो अविद्या को परस्यू करते हैं वो इवेंचुअली अंधकार में जाएंगे, क्योंकि ये उस डेफिनेशन को मैच करती है कि हमारी विद्या का मतलब है हमें परमात्मा की तरफ ले जाना, और अविद्या का मतलब है हमें ग्रॉस की तरफ, स्थूल की तरफ ले जाना। तो इसलिए जो पहला, जो उसमें अंदर जो सेंटेंस वर्स में आया कि भाई जो अविद्या की तरफ जाते हैं वो अंधकार में उनका अंत होता है, ये तो बात समझ में आ गई, हो गई, सिंपल हो गया ना। अब दूसरे सवाल, दूसरे में आते हैं कि भाई जो विद्या की तरफ जाते हैं वो और भी घोर अंधकार की तरफ जाते हैं। यहाँ आ जाती है प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ आएगी कि अरे ये क्या मतलब है। विद्या को अर्जित करने के साथ में एक, उसका एक साइड इफेक्ट होता है। विद्या अर्जन के साथ में साइड इफेक्ट होता है, उसके बारे में एक बिलीफ बना लेना। बिलीफ का मतलब आपका मन के अंदर इस तरह के संस्कार और वासनाएं उत्पन्न हो जानी, तो उसके सिवा कुछ भी सत्य नहीं है, ऐसा भाव आ जाना। यानी जब हम बिल्कुल स्कॉलरली इवेल्युएशन ही करेंगे तो हमारे मन में ये भाव आ जाएगा कि यही सत्य है। तो जो विद्या से उत्पन्न ज्ञान है उसकी जगह यही सत्य है का भाव उसमें आ जाता है। जब ऐसा भाव आ जाता है तो उस भाव से निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। हर्ष, यहाँ पे विद्या को एक्सप्लेन करो, क्योंकि यही मैं पहले यही समझ रहा था। तो भाव जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो भाव यहाँ नहीं, पे जो अभी देखिए विद्या है भाव, वो स्पिरिचुअल विद्या तो नहीं है ना फिर? ना ना, विद्या तो एक सब्जेक्ट है, हाँ। एक एक एक्सप्लेनेशन, ठीक है। हम्म। आपने विद्या में उस एक्सप्लेनेशन को इतना स्टडी किया कि उसी में आपका विश्वास बन गया, और आपको लगा यही सत्य है। नहीं, ये आध्यात्मिक विद्या है विद्या वही के लिए कह ज्ञान रहे में हो पो या एक्सटर्नल? है। आध्यात्मिक विद्या ओके, या जो स्टेप बैक, स्टेप बैक। विद्या इज ए सब्जेक्ट, विद्या इज ए एक्सप्लेनेशन, विद्या इज ए वे ऑफ डिफाइनिंग थिंग्स, एक्सप्लेनिंग थिंग्स। विद्या की आउटकम इज ज्ञान, ठीक है। विद्या का आउटकम ज्ञान में अगर नहीं होता है तो क्या आउटकम होता है? अभी हम विद्या की बात कर रहे हैं, हम अविद्या की बात नहीं कर रहे। अविद्या तो हमने डिफाइन कर लिया ना, जो आपको परमात्मा की तरफ नहीं ले जाती है वो अविद्या है। तो हम अब उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो हो गई, बात खत्म हो गई। अब हम कर रहे हैं बात विद्या की। विद्या का आउटकम होता है ज्ञान। विद्या का आउटकम अगर ज्ञान नहीं है तो क्या है? कोई ना कोई तो, आपने जो भी चीज पढ़ी है, लिखी है, उसका कोई तो आउटकम होगा। जब विद्या का आउटकम ज्ञान नहीं होगा तो उसका आउटकम एक होगा, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं बिलीफ। उस बिलीफ में आप इस तरह से घिर जाओगे
कि आपके मन में वो बिलीफ इतनी घर कर जाती है तो उसमें से निकलना असंभव जैसा हो जाता है। बहुत बड़े बड़े आज के युग के अंदर आपको ज्ञानी मिलेंगे, सो कॉल्ड, जो एक विद्या के पारंगत हैं, क्योंकि विद्या तो उन्होंने ग्रहण कर ली है, मगर आउटकम उसका ज्ञान नहीं हुआ। उस विद्या की को इतनी ज्यादा उनके मन में बिलीफ आ गई है उसकी, कि वो समझते हैं यही सत्य है। हमारे कुछ लोग जो है वो इस बात को बहुत बोलते हैं कि भाई मैं तो रियलाइज कर लिया हूँ, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि संसार जो है वो माया है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बट क्या उन्हें ज्ञान है कि ये माया है, या सिर्फ उन्होंने ये विद्या ग्रहण कर ली है ये संसार माया है? ऐसे व्यक्ति का बहुत ही मुश्किल हो गया काम, क्योंकि उसके मन के अंदर एक धारणा तो आ गई, एक बिलीफ तो आ गई है, मगर ज्ञान की अनुपस्थिति। इस प्रकार की विद्या के जो के पीछे जाते हैं जो, और उस विद्या को ही आउटकम समझते हैं। इस विद्या को मैंने पा लिया, ये आउटकम है उसकी, ये मेरा ये मेरा अचीवमेंट है। जब ये बात आ जाती है, इस व्यक्ति को उस में से बाहर निकालना और ज्ञान की तरफ ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वो विद्या विद्या नहीं रह जाती, क्योंकि विद्या का मतलब है ज्ञान में जाना, और विद्या का आउटकम ज्ञान होना ही चाहिए। उसका परिभाषा ही यही है विद्या की। अगर विद्या का आउटकम ज्ञान नहीं होता है तो वो एक बिलीफ के अंदर चला जाता है, संस्कार और वासना के अंदर चला जाता है, और वो उसमें से निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। आदमी मर बस जाता है, लड़ जाता है, काट जाता है, अपनी बात मेरी ही ठीक है ये कहने के चक्कर में। ज्ञान है ही नहीं। सो अरे अर्शी, एक ये मैं पढ़ रहा हूँ कहीं पे, हाँ जी। ये लिखते हैं, दे हु वर्शिप अविद्या, in parenthesis rights, alone enter into blinding darkness, and they who are engaged in vidya, in parenthesis meditation, verily fall as though into even greater darkness. ये किसी ने इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है इसी का, वर्ष का। वही वही है बात वो कि अम, इस तरह की बात करना आपको अधूरी जानकारी देने वाली बात है, या अधूरी जानकारी जिसके पास है वो। देखिए प्रिंसिपल, बाकी सब भूल जाइए, प्रिंसिपल देखिए, मेन प्रिंसिपल क्या है? विद्या का प्रिंसिपल है ज्ञान, आउटकम है ज्ञान। ज्ञान का मतलब यहाँ पर जो आपको एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरफ ले जाए, जो परमात्मा की तरफ ले जाए, जो आपको वननेस की तरफ ले जाए, जो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जाए, जो संसार की वास्तविकता आपको आपके ज्ञान में अनुभव में ले आए, वो उसको ज्ञान कहते हैं। तो विद्या का आउटकम ज्ञान होना आवश्यक है, अदरवाइज हम उसे विद्या ही नहीं बोलते। अविद्या का आउटकम है जो ज्ञान से दूर ले जाए। वो सब्जेक्ट जो आपको ज्ञान से दूर ले जाएगा वो अविद्या मानी जाती है। दिस इज द प्रिंसिपल डेफिनेशन। ठीक है ना? तो इस डेफिनेशन के हिसाब से अविद्या को फॉलो करने वाला तो अंधकार में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हमारा मतलब है, ज्ञान को लाइट कहते हैं, अज्ञान को अंधकार कहते हैं, तो वो तो अंधकार की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो वो बात तो क्लियर हो जाती है। विद्या को
परस्यू करने के बाद आउटकम अगर ज्ञान नहीं है तो वो विद्या उस व्यक्ति को भी अंधकार में ही ले जाती। क्योंकि विद्या का आउटकम ज्ञान होना आवश्यक है। इट इज एसेंशियल। यू कैनॉट हैव विद्या, you cannot call it a vidya unless it gives you an outcome of jnana. So if you pursue vidya without an outcome of jnana, then that creates a bigger problem. देखो, अविद्या में जो फॉलो कर रहा था उसको आप कभी रियलाइज करवा दो कि भाई ये तो अविद्या है, इसको छोड़ दो और विद्या की तरफ चले जाओ, तो वो चला जाएगा, कभी ना कभी वो चला जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति का जब अनुभव होना शुरू हो जाता है, अविद्या का अनुभव भी उसको वापस ले जाता है ना ज्ञान की तरफ, तो मैं चला जाएगा। मगर जो व्यक्ति इस विद्या को सत्य मानकर ज्ञान के बिना उसमें फंस गया, उसको निकालना तो बहुत ही मुश्किल है। अच्छे हर्ष में थोड़ा सा एक इसका पैरा पढ़ रहा हूँ। हाँ जी। ये दूसरे मनुष्य जो हैं, हाँ दूसरे जो मनुष्य न तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्तापन के अभिमान से रहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और न विवेक, वैराग आदि ज्ञान के प्राथमिक साधनों का ही सेवन करते हैं, परंतु केवल शास्त्रों को पढ़ सुनकर अपने को विद्या का, ज्ञान का मिथ्यारोप करके ज्ञान अभिमानी बन बैठते हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसा मिथ्या ज्ञानी मनुष्य अपने को ज्ञानी मानकर हमारे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, इस प्रकार कहते हुए कर्तव्यपनों को त्याग कर देते हैं और इंद्रियों के वश में होकर शास्त्र विधि से विपरीत मनमाना आचरण करते हैं। एग्जैक्टली दिस इज एग्जैक्टली द एक्सप्लेनेशन आई वाज ट्राइंग टू गिव यू, बट इन डिफरेंट वर्ड्स। क्या मतलब जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल हम लोगों को देखिए, विद्या बहुत है, इतना इतने सब्जेक्ट्स हैं, इतनी चीजें हैं कि एक व्यक्ति को एक जीवन में वो सब सीखना मुश्किल है। मगर प्रिंसिपल हम समझ सकते हैं, प्रिंसिपल बहुत छोटे हैं और उसकी कसौटी के ऊपर हम चीज को मेजर कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल दो, अगेन मे बी आई एम रिपीटिंग, बट ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको रिपीट करना अच्छा है। विद्या का आउटकम ज्ञान होना आवश्यक है। जिस विद्या से आउटकम में ज्ञान नहीं आता, तो वो विद्या होते हुए भी आपको अंधकार मिलेगा। हाजी, कैन वी से दैट अगर विद्या का आउटकम ज्ञान नहीं है तो वो बिलीफ हुआ होगा, बिलीफ होता है, कैन आई बिलीव से हो दैट? जाता है। हाँ, तो बिलीफ जो है ना, बिलीफ अहंकार लगाती है। बिलीफ जो है वो आपको मैं के साथ में जोड़ती है। बिलीफ आपको, कोई भी बिलीफ आपकी जो है वो मैं के साथ में आपको चिपका देती है। उस बिलीफ के अगेंस्ट कोई भी बात होगी, आपको क्रोध आ जाएगा। और ये बहुत कॉमन होता है, इट्स वेरी यूजुअल बिल्कुल थिंग। कॉमन है। मेरा बिलीफ ये है, अब आप कुछ बोल रहे हैं यार, लेट अस, मतलब इमीडिएटली यू रिएक्ट एकदम टू गुस्सा दैट। आ जाता है। तो ये उसका एक वो है, एक वो उसका क्या कहते हैं, सिम्टम है उसका। तो, क्या मतलब, देखो, ये लाइक आई सेड, मतलब लेट्स सिंप्लीफाई दिस थिंग। अंडरस्टैंडिंग हमारी सिंप्लीफिकेशन के साथ में होनी चाहिए। तो कोई किसी ने कहा था ना कि अगर आप एक सब्जेक्ट को एक बच्चे को नहीं समझा सकते तो आपको वो सब्जेक्ट जो है वो समझ नहीं आया। हम सब बच्चे ही हैं। हम सभी बच्चे हैं। हम सभी बच्चे हैं। तो एनीवे, तो सो दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट कि भाई इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन समझना चाहिए कि विद्या विद्या होते हुए भी आपको अंधकार की तरफ ले जा सकती है, यदि उसका आउटकम ज्ञान में परिवर्तित नहीं होता। वो सिर्फ बिलीफ बनाती है, बिलीफ आपको अहंकार देता है
अहम देता है, अहंकार देता है, और उसके साथ में क्रोध भी देता है, उसके साथ में मोह भी देता है, उसके साथ में सब कुछ देता है, इसलिए वो नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, आई होप जितना मुझे समझ में आया मैं कोशिश किया। इसको ना थोड़ा धीरे जो समझाया है तो धीरे धीरे गुन के समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। चिंतन चिंतन आवश्यक है ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हो अवश्य। आप। इसका चिंतन आवश्यक है। ये क्या है कि अभी ये जोल्ट है एक छोटा सा कि अरे यार हाँ विद्या या विद्या हो गई है तो और भी ज्यादा वो हो गया हाँ, तो तो हाँ एग्जैक्टली, तो ये चिंतन है, यही क्वेश्चन है, और इसी को आप कसौटी करिए, इसी को आप मेजर कीजिए डिफरेंट लॉजिक के साथ में, डिफरेंट रैशनल के साथ में, देखिए कि ये प्रिंसिपल इसका फुलफिल होता है कि नहीं। वैसे ये जो आपने कहा है ना, विश्वास हो जाता है अंधकार, सिर्फ सोचने लगते हो यही है, जैसे नॉलेज नहीं बढ़ी, तो ये मेरे को आज समझ में आया। क्लैरिटी, मतलब क्लैरिटी जो है ना आज हुई है भाई, अगर नॉलेज नहीं बढ़ी तो इसका मतलब है आप, तो सिंपल। थैंक यू वेरी मच। गुड ग्रेट। चलो नाउ सब्जेक्ट नंबर 2 बिकॉज टाइम इज वेरी शॉर्ट। हाँ, तो इसको मैं फिर रोक देता हूँ।